I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Develop our program, it generates, if at all, it generates runtime error. Then in that situation, what happens? The executions of program is interrupted. It doesn't complete the whole task. So, in order to maintain the proper workflow, that is proper flow of the program, the programmer's responsibility is to handle those concepts. Okay. Now, today we will have custom exceptions. What is custom exceptions? Custom exceptions means the exceptions what we create, as per our requirement, as per our design. Okay, that is what custom exceptions. Till now, whatever exceptions we have used, we have handled, they were all built-in exceptions. That means all those exceptions which are predefined in Java language. Now, already we had seen in studies discussion that there are two types of exceptions: checked exceptions and unchecked exceptions. Do you remember those? Do you have any problem in understanding those checked exceptions and unchecked exceptions? We had already seen checked exceptions and unchecked exceptions. Now, right now, we are going to learn how we create unchecked exceptions. So, unchecked exceptions, both category. So, how we create our own exceptions, that is called custom exceptions. Let me share just wait for a while. Let me share the screen. Okay, can you see the slides? It's 5 days. The topic is custom exception. What does it mean? Creating our own exception. Creating our own exception is known as custom exceptions. Can you see this slide? Is this screen visible to you all guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, okay, sir. nice, fine. I'm moving. Just read out. And already in the, I had shared both PPT slide as well as the Java code, what you people had seen into the previous session. Just a moment. Give me a bit of time.
Okay, I am back. Just okay. Now say this: creating unchecked custom exceptions. Now, whichever exceptions you create, first of all, what exceptions represents? Exceptions class represents particular type of error. In Java language, when we design using pure OOPS, that is pure object oriented, every bit of thing is represented as an object. So every particular kind of error, what we have, what that gets generated during execution of the program is generated by different type of objects. And to create object, we know that we are supposed to design a class. We are supposed to create a class. So when the question comes to create custom exceptions, we are supposed to define a new class. That is the first point. And the second point is the new exceptions class what we are going to create must be inherited from runtime exceptions class. Remember, already previous day slide, fourth day slide, we have seen a picture of hierarchical diagram for exceptions classes. Remember, in those you would have seen that all the unchecked exceptions are the children of runtime exceptions class, whereas the checked exception is the checked exceptions are the children of exceptions class, है ना? तो अगर हम custom exceptions create करते हैं which is under the category of unchecked exceptions, तो ये runtime exception से inherit होने चाहिए. This is the second point. Okay. Now look at the sample code. Now let custom exceptions. We are going to create a class name. Just ये एक just symbolic just एक example है, simple, just to complete the syntax. Remember. So assume that there is a custom exceptions class. So because हम लोग जो exceptions class create करने जा रहे हैं, that belongs to the category of unchecked exceptions. So it must be inherited from runtime exceptions class. That is why look, I have written runtime exceptions class. Okay? And now the second class XYZ, ये हमने assume किया कि this is the class which represents certain thing, and that class is having a test method which is performing certain task, and during that task it generates the kind of runtime error that is custom exceptions. So this is what symbolically I have demonstrated here. जब हम इसके एक complete example को देखेंगे तब ये चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएंगी. ठीक है? तो throw keyword का use होता है raise the exceptions. So in the test functions there is a situations where as per our logic custom exceptions error object has to be raised. तो object raise करने के लिए हमारा ये line होगा, keyword होगा throw. Throw will be used to what is that called? Raise the exceptions. Always you know that in Java objects are created runtime, है ना? इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है throw new custom exceptions. What is this custom exceptions? Remember, custom exception is a error class what I have created, and because of this definitions, this error objects belong to which category? Checked exceptions or unchecked exceptions? Please let me know, any of you. This custom exceptions class what I'm creating, so this particular exceptions belongs to which category? Checked exceptions or unchecked exceptions? ये हमें पता चल जाएगा ये देख के कि this error class is the child class of what? मतलब क्या? Which is the parent? तो custom exceptions का parent कौन सा हो गया? Runtime exceptions. अगर runtime exceptions parent हो गया, इसका मतलब अभी जो हमारा custom exceptions class दिख रहा है ये किस कैटेगरी का हुआ? Unchecked exceptions का. Remember, ठीक है ना? और unchecked exceptions कैसा होता है? अब यहाँ पे दो चीजों देख लो.
एक थ्रो एंड थ्रोज है। तो जब भी आपके फंक्शंस एक्सेप्शंस रेज करते हैं, then that exceptions must be declared using throws keyword also. This is the declaration that test functions generates the test functions may raise the runtime exceptions, which is called custom exceptions. Is this clear? Is it clear? With this example, it will be more clear. Just wait for a while. Now I am moving to the next category, which is called हमारा पहला था अनचेक्ड एक्सेप्शंस, और ये अनचेक्ड एक्सेप्शंस का डेमोन्स्ट्रेशंस हो गया. हाउ डज इट वर्क? लुक एट दिस. मेन फंक्शंस हमने लिखा है. नाउ इन मेन फंक्शन एक्चुअली xyz represents a class of certain for performing certain thing, and when we are calling test, तो हमने देख लिया था कि ये जो टेस्ट फंक्शंस है ऑब्जेक्ट क्लास का, दैट इज obj, तो इंस्टेंस वेरिएबल हो गया ऑफ क्लास xyz. तो ये जनरेट करता है कस्टम एक्सेप्शंस को. इसलिए हमने क्या लिखा है? ट्राई फॉलोड बाय कैच एंड व्हिच रिसीव्स कस्टम एक्सेप्शंस की. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू pardon. It is just a symbolic code. The complete example we will see shortly when we have the Java code. Will that be okay for the time being? So just we have to we have to set the mind, how do we create exceptions of both the category. Now creations of checked exceptions. दोनों में कॉमन बात है, कोई भी एक्सेप्शंस होगा हमें एक्सेप्शंस क्लास क्रिएट करना है, बट अंतर बस इतना ही है. लुक एट दिस. इफ इट इज चेक्ड एक्सेप्शंस तो इसके पेरेंट हो जाएंगे एक्सेप्शंस. इफ इट इज अनचेक्ड एक्सेप्शंस देन पेरेंट क्या हो जाएंगे? रन टाइम एक्सेप्शंस. दो क्लास याद रखना होगा, और ये दोनों क्लास java.lang के अंदर होता है. And java.lang जो पैकेज है, ये default package of Java program. That means every class available inside java.lang package are directly, or you can say in automatically imported for your Java program. So you can use them without having any explicit import declaration. Okay. Now let's move on to the syntax of this. See here. Now we are having again a class called custom exceptions. Of course, ये another example है, कोई भी नाम हमारा हो सकता है. हमने just नाम दिया custom exceptions, मतलब कि हमारा खुद का exception है. And ये inherit किसे कर रहा है? This is going to inherit exceptions class. This is going to inherit exceptions class. है ना? Now दोनों में बस अंतर इतना ही रहा कि चेक्ड एक्सेप्शंस में पेरेंट क्लास था, रन टाइम एक्सेप्शंस, सॉरी अनचेक्ड एक्सेप्शंस में, एंड इन द केस ऑफ चेक्ड एक्सेप्शंस द पेरेंट इज एक्सेप्शन. Except this, there is no difference in both the examples. Except this, there is no difference in both the examples. When we will see the complete example, in order to create and demonstrate, I will show you slowly. Wait, for that you don't have to worry, because इसमें each and every concept को समझना बहुत जरूरी है. Directly, if I give you one example, that is the final answers, many of the intermediate things you will not be able to understand. Now look, one thing. तो मेन क्या था? हमारा खुद की एक्सेप्शंस को बनाना, जो कि आइदर कस्टम एक्सेप्शंस कैटेगरी के हो या एक्सेप्शंस ये चेक्ड एक्सेप्शंस कैटेगरी के हो या अनचेक्ड एक्सेप्शंस के कैटेगरी को. ठीक है. डेमो में कोई फर्क नहीं है. डेमो इज सिमिलर. दोनों में हम एक जैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड ट्राई कैच के अंदर उसको हम हैंडल कर रहे हैं. ट्राई इज हैविंग द एक्चुअल पीस ऑफ कोड्स where we are working,
and that follows by catch, which actually handles the raised exception. Is it clear? Have you understood the concept of custom exceptions? What custom exceptions means? Please let me know, anyone. Please let me know. क्या ये concept clear है? Is this clear, guys? Now let me see how many of you are having a still doubt. Please raise. If someone wants to ask. Now I can see each one of you. What have you understood by the term called custom exceptions? What you got? Have you understood custom exceptions? Let me know, anyone. Anyone come up and tell me what you understood by custom exceptions? Akshita Singhal. Yes sir. हाँ, क्या आपको समझ में आई कस्टम एक्सेप्शन से? यस सर. सर ये हम अपने आप बनाते हैं एक्सेप्शंस, मतलब हाँ, ये yes, बिल्ट अपने इन नहीं होती. अकॉर्डिंगली. वेरी गुड. क्योंकि इस टाइप की जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग है, शायद हम लोग के लिए नया होगा. ऑफ कोर्स हम सी तो पढ़ते हैं, C++, बट ऑल दीज टॉपिक्स को हम स्ट्रांगली शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. बट आई एम गिविंग मोर एंड मोर stress on that, creating our own exceptions. Okay. So, Ashish, anyone? Is this clear to you all, guys? Because जैसे जैसे हमारी टॉपिक आगे बढ़ेगी, अब आगे ऐसा सर्टेन चीज होगा, may not be after 2 or 3 days, or maybe if I believe even the next topic, I would expect that the kind of steps what I am demonstrating from here, आप सारे लोग अपने प्लेस पे लैपटॉप को ओपन करके and you will follow the same steps. जब तक आप उसको नहीं फॉलो करेंगे, सर्टेन चीजें आपको दिक्कत करती है. But again, it takes a lot of time, so that is what I would love to explain all the steps and the piece of code and the PPT slides what I prepared. मैं उनको शेयर भी कर रहा हूँ. अब आज से तो रेगुलर बेसिस पे दे विल बी शेयर्ड. तो आप उसको देख के फिर उसको प्रॉपर तरीके से समझ के एंड यू जस्ट सिट एंड इम्प्लीमेंट देम, तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं. ठीक है. Now I am moving to the what is the called Java codes. Okay, na? Why in more depth we have to discuss that. आगे चल के हम लोगों को ये जब भी हमारा जो भी requirement and design होगा, हम लोग उसमें उसको create करेंगे frequently. Now I am moving to this. Now let me reduce this screen size and let me have the Java code. Java code is here. Yeah, here is the Java code. Close the tips. Now, you can see here in the same. So first of all, I will explain you the kind of problem which I have taken. Look at this. The concept
of stack, you people will be knowing what is a stack, है ना? You would have created this stack. In which subject you had created? You had studied the stack. Do you remember? Akshita? यस सर. कौन से सब्जेक्ट में आपने पढ़ा था स्टैक को? सर वैसे स्टैक तो सी और सी प्लस प्लस में भी होता है. नहीं वो तो ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा. यस सर. स्टैक क्या है ये तो एटलीस्ट हम सारे लोग जानते हैं. तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट जो डेटा स्ट्रक्चर है, तो दैट सेम डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूजिंग उप्स कॉन्सेप्ट जावा में क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो एक ऐसा बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल्स है जहां पे हम कस्टम एक्सेप्शंस को बहुत इजीली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं. वेरी इजीली हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं. तो देखो वहां पे दो सिचुएशंस है ना कि व्हाट इज अ स्टैक. इट इज समथिंग लाइक ए कंटेनर. इट इज अ बॉक्स in which we have spaces in order to store our data, first in last out or last in first out, whatever you call. अब यहाँ पे दो situations होते हैं. एक stack full situations होते हैं और दूसरा stack empty situations होता है. मान लो हमारे पास stack है खाली, है ना? If the stack is empty, and from the empty stack, if you are trying to pop something. Pop का मतलब you are trying to remove data from the stack, है ना? तो just try to recall them because हम उसको pictorially नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो आपका previous topics है. बस हमने उस examples को लिया है because आप उसको जानते हैं और चीजों को easily समझ सकते हैं इस वजह से, है ना? Okay. तो दो situations हो गया stack full. तो लोग हमने यहाँ पे दोनों एक्सेप्शंस को ले लिया है, एक कस्टम एक्सेप्शंस एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस एंड चेक्ड एक्सेप्शन. दोनों एक्सेप्शंस को दोनों इसलिए लिया बिकॉज बोथ हम इसी एग्जांपल से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं. लुक दैट्स हम नीचे से उस कोड को ऊपर ला रहे हैं. अब देखो एक दो एरर सिचुएशंस होते हैं स्टैक के केस में. या तो स्टैक खाली हो सकता है, नहीं तो स्टैक फुल हो सकती है. स्टैक एम्प्टी और स्टैक फुल. इफ एम्प्टी स्टैक से हम किसी डेटा को निकालना चाहेंगे देन दैट इज एरर सिचुएशंस. इट इज ए स्टैक अंडरफ्लो जिसको कि हम स्टैक एम्प्टी बोल रहे हैं. एंड इन द सेम मैनर इफ द स्टैक इज फुल एंड इन द फुल स्टैक इफ यू आर ट्राइंग टू स्टोर समथिंग, insert data, that is push operations होता है डेटा इंसर्ट करने के लिए एंड पॉप ऑपरेशंस होता है स्टैक से डेटा निकालने के लिए. ठीक है ना? तो स्टैक फुल एक्सटेंड किसको कर रहा है? एक्सेप्शंस क्लास को. ठीक है ना? तो ये कौन सा एक्सेप्शंस हो गया? चेक्ड एक्सेप्शंस हो गया. CHE checked custom exceptions. अब बात समझ में आ गई. अगर हम चेक्ड कैटेगरी का क्रिएट करेंगे तो हमारे एरर क्लास का, एक्सेप्शंस क्लास का ये कौन होगा? पेरेंट एक्सेप्शंस होगा. एंड उसी तरह से स्टैक एम्प्टी का कौन होगा? ये स्टैक एम्प्टी हो गया. और आई कंसिडर्ड दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट एक्सेप्शंस in order to represent this stack empty exception situations, है ना? ये हम unchecked exceptions category का लेने जा रहे हैं. तो I have two classes. Look at this. Stack empty exceptions, नाम भी हम वैसा ही रखते हैं मिलता जुलता. Stack empty exceptions and stack full exceptions. इसलिए रख रहे हैं क्योंकि नाम से समझ में आ जाए कि these are the exceptions classes. Now look at this
a very beautiful thing is I have created a functions called toString. Can anyone tell me why this function's name is toString? toString के नाम से ये functions क्यों बनाया गया है? क्या आप कोई भी बताएंगे? सुहानी, can you tell me? Anyone, guys? Why I have created the function whose name is toString? ये कुछ और भी नाम हो सकता था. Why its name is toString? सर बाय डिफॉल्ट जब प्रिंट कराएंगे तो यही आउटपुट देगा सर. सर टू स्ट्रिंग मेथड से बाय डिफॉल्ट जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं तो ये अभी टू स्ट्रिंग आप ओवरराइड करा के लिखा रहे हैं सर, रिटर्न स्टैक इज फुल. Right. ये override word आपने use किया. That is correct. All guys, please listen what Mr. Ashok says. He has just now said. He has used a word called override. So why this override word has been used? From where it came? Override का use का word अगर override use हुआ इसका मतलब ही हो गया कि ये toString method किसी न किसी parent class के अंदर है. तो पेरेंट क्लास कौन सा है? एक्सेप्ट. तो इसका एक्सेप्शन है, तो क्या एक्सेप्शंस के अंदर toString है या फिर उसका भी कोई पेरेंट? सर उसका भी पेरेंट क्लास है सर. मतलब हर एक ऑब्जेक्ट मतलब हर एक ऑब्जेक्ट में टू स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट होता है क्योंकि वो लैंग में रहता है सर. हाँ हर एक ऑब्जेक्ट क्लास. हाँ इसको yes what single said that needs to be corrected कि when you draw the class hierarchical diagram, you will find that the topmost class will be objects and that object contains toString functions. जावा के क्लास हायरार्की को क्लियर समझना चाहिए. सबसे फर्स्ट क्लास है ऑब्जेक्ट and that class or that object class is inside java.lang. तो जब कभी भी हमें अपने ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन करना हो, यू मस्ट हैव ए toString फंक्शंस जो कि रिटर्न टाइप ऑलवेज स्ट्रिंग होगा और ये इसका एक्सेस मेथड पब्लिक होना चाहिए. ये ओवरराइड किया हुआ है, रिमेंबर. इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न क्या कर दिया? स्टैक इज फुल. तो जब कभी स्टैक फुल एक्सेप्शंस ऑब्जेक्ट को as a string represented data ली जाएगी, तो for that this particular toString method will be called. Very nice. So each one of my friends, please note down, these are very important concepts and they need to remember. There is no point in forgetting all those important concepts. Okay. तो सेकेंड कैटेगरी इज अनचेक्ड एक्सेप्शंस. तो दोनों कैटेगरी के एक्सेप्शंस को हम लोग देख चुके हैं. नाउ माय पॉइंट इज व्हिच एक्सेप्शंस वी शुड क्रिएट, आइदर कैटेगरी ऑफ चेक्ड और अनचेक्ड. जरा ये चीज बताएं. अगर है ऐसा एक्सप्लेनेशन तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, व्हाट मे बी द रीजन, व्हाट मे बी द एक्सप्लेनेशंस. Which categories custom exceptions we should create, checked or unchecked? Anyone? और भी लोग ज्वाइन करें. Ashok, Akshita, they are all both of you are participating. Good concept. Tejaswini. Tejaswini, are you getting me? Yes, sir. अब ये बताएं आप. डोंट हेजिटेट. मिस्टेक होगा कोई बात नहीं है, होना चाहिए. अनलेस यू इंटरेक्ट आप चीजों को रिकॉल नहीं कर पाएंगे. अगर कंफ्यूजन है तो पूछेंगे भी. मेरा क्वेश्चन था कि कस्टम एक्सेप्शंस का मतलब हो गया कि वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शंस क्लासेस. नाउ ऑलरेडी आई सेड टू types of exceptions, checked exceptions and unchecked exceptions. Which one will be better and why? Either to create checked or unchecked, और या फिर आपने समझा नहीं. तेजस्विनी,
Yes, sir. Sir, I don't have any idea about it. आप कल के क्लास को किए थे? No, sir. ये फिर एब्सेंट हो जाएंगे तो फिर दिक्कतें हैं। तो हर क्लासेस का स्लाइड शेयर किया जा चुका है, पीपीटी स्लाइड एंड जावा कोड। आपने उसको देखा? Yes, sir. तो जब सारे कोड्स को देखिए और उसको डिस्कस करिए आपस में। यू ऑल आर फ्रेंड्स स्टेइंग इनटू द सेम, बिलोंग्स टू सेम कॉलेज। और अगर दिक्कतें हैं तो मैंने पूछा, बी रेगुलर एंड पढ़ने के साथ साथ इनको, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करना होगा। आशीष, हेलो आशीष, कौन सा कस्टम एक्सेप्शंस हमें क्रिएट करना चाहिए, चेक्ड या अनचेक्ड? अच्छा, इट्स ओके। अक्षिता, कैन यू से? सर शायद से अनचेक्ड। पार्डन? सर शायद से अनचेक्ड होगा। नहीं, अच्छा कौन सा होगा, चेक्ड या अनचेक्ड? सर अगर यूजर के इनपुट पे डिपेंड हुआ तो अनचेक्ड होगा। यहाँ पे इनपुट से क्या लेना देना है? सबसे पहले चेक्ड एंड अनचेक्ड में डिफरेंस क्या हुआ? सर चेक्ड कंपाइल टाइम पे होता है और अनचेक्ड रन Check- टाइम पे। देखो, इनफैक्ट एक्सेप्शंस कोई भी हो, पहले इन चीजों को नोट करो। एनी एक्सेप्शंस, वेदर इट इज a checked or unchecked, no matter, exceptions always will be generated, that is runtime errors है। एक लाइन में लंबा चौड़ा सेंटेंस को छोड़ो, runtime errors are the exceptions, और वो तभी होगा जब प्रोग्राम आपके एग्जीक्यूट करेंगे। बस चेक्ड एंड अनचेक्ड में फर्क ये है कि अनचेक्ड एक्सेप्शंस को हैंडल करना मैंडेटरी हो जाता है। इफ आई डू नॉट हैंडल, देन कंपाइलर विल रेज द कंपाइलेशन एरर, वो हमें फोर्स कर देगा कि यू मस्ट हैंडल इट। एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस को विदाउट हैंडल किए हुए भी हम जावा में प्रोग्राम को लिख डाल सकते हैं, लेकिन उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा? इफ एरर आनी है तो रन टाइम में आ जाएगी और उस समय हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट कर जाएगा। तो अच्छी आदत तो ऑलवेज होगी कि वी मस्ट हैंडल देम, ये फायदा होगा। तो अगर आपका अनचेक्ड एक्सेप्शंस है तो वो आपको डिटेक्ट नहीं होगा कंपाइलेशन टाइम पे। तो चलिए, कल जो भी एब्सेंट थे वो उनको आप पता चल जाएगा आगे के जब एग्जांपल्स को, और भी हम जो इसमें आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने दो एक्सेप्शंस क्रिएट किया। आशीष मिश्रा, आर यू गेटिंग द पॉइंट? आशीष, सुहानी, are you getting the point? So let's see. Now Tejaswini, you are absent in yesterday's class. So the two examples what you are seeing on the screen, हमने स्क्रीन को और बड़ा कर दिया। दोनों एक्सेप्शंस आप देख रहे हो कैसे क्रिएट करना है। चेक्ड एक्सेप्शंस के पेरेंट क्लास कौन से हो जाएंगे? एक्सेप्शंस। एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन के पेरेंट क्लास कौन से हो जाएंगे? रन टाइम एक्सेप्शंस। नाउ लेट्स यूज बोथ दीज एक्सेप्शंस। अब इसको यूज करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वी आर गोइंग टू टेक अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैक implementations, the topic what we have studied, what we have studied in the subject called data structure. अब look at this. अब स्टैक को अगर आप यूजिंग एरे क्रिएट करते हैं तो आप जानते हो कि उसमें एक एरे होगा,
जिसके अंदर सारे डेटाओं को स्टोर करेंगे, एंड एक इंडेक्स टॉप वेरिएबल होगा जो स्टैक के अंदर जो हम पुश करेंगे या डेटा को जो स्टोर करेंगे, दैट इज पुश ऑपरेशंस, वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा. इनिशियली द स्टैक इज एम्प्टी एंड दैट इज व्हाई लुक एट दिस, द top is set to -1, and for storing a stack, array has been created at runtime. Now the parameter is size of a stack. So at executions time, the stack object what we create, we specify that the size of a stack is what, and that is we are creating. तो हमने एक array create कर लिया and the top is pointing to -1. इसका मतलब क्या हो गया कि अभी स्टैक में एक भी आइटम नहीं है. हम कमेंट्स में भी लिख देते हैं सेट स्टैक टू एम्प्टी, है ना. हमने स्टैक को एम्प्टी क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, क्रिएट किया मेमोरी, क्रिएट एरे और स्टैक. स्टैक के लिए हमने एरे बना लिया और इसको -1 पे सेट कर दिया जो एम्प्टी है. नाउ लुक एट दिस पॉप ऑपरेशंस. उस ऑपरेशंस का काम है स्टैक में डेटा को स्टोर करना. अब यहाँ पे जरा गौर से देखो, कुछ चीजों को हम यहाँ पे अभी कमेंट करते हैं. उसका काम है स्टैक में डेटा को स्टोर करना एंड पॉप का काम है स्टैक से डेटा को रिमूव करना. तो दीज आर द पुश एंड पॉप ऑपरेशंस. अब यहाँ पे देखिए पुश में क्या हो गया, सिंपल लॉजिक है कि अगर स्टैक में जगह होगी देन ओनली थिंग्स कैन बी स्टोर्ड. अब मान लो एरे को रिकॉल करो, एरे की स्पेस है 5, इसका मतलब 5 आइटम ही उस स्टैक में रखा जा सकता है और ये सारा आइटम एरे के किस किस लोकेशंस पे होगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4. ओके, तो आप देख रहे हो तो लेंथ तो आपको यहाँ पे 5 है. तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो अगर स्टैक में 5 आइटम स्टोर्ड है तो टॉप मोस्ट आइटम का इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू. अगर मैंने एग्जांपल लिया कि if the size of a stack is 5, that means a stack is created using array, तो size of array हो गया 5. और अगर stack में 5 आइटम स्टोर किया गया तो सबसे टॉप मोस्ट आइटम का इंडेक्स कितना होगा अशोक? इंडेक्स वैल्यू 4, राइट, करेक्ट. तो स्टैक में अगर हम डेटा को पुश करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे डिजायरेबल ये है कि स्टैक में जगह होनी चाहिए. अगर टॉप की वैल्यू अगर हमारा लेंथ -1 के अगर बराबर हो, देखो यहाँ पे लेंथ -1 के अगर बराबर हो तो लेंथ की वैल्यू 5 हो गई, तो एरे डॉट लेंथ तो 4 हो गया. अगर 4 इज इक्वल टू टॉप, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा स्टैक फुल है. तो इस सिचुएशंस में हमें वी शुड रेज द स्टैक फुल एरर. तो इस लाइन पे क्या हो रहा है, गौर से देखो, मैं कमेंट में लिख रहा हूं रेज द कौन सा स्टैक फुल एक्सेप्शंस. रिमेंबर हमने नेम को चेंज किया था ताकि आप समझ पाए हमारा क्या था एक्सेप्शंस का नाम, स्टैक फुल एक्सेप्शंस. यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्टैक फुल, रेज द एक्सेप्शन. है ना, एक्सेप्शंस रेज करने को समझ गए. तो थ्रो का यूज क्या हो गया, एक्सेप्शंस को रेज करना. इसलिए मैंने कमेंट में भी अभी लिखा है आपके सामने सो दैट आप उसको देख पाए. अदरवाइज लुक एट दिस, अदरवाइज सबसे पहले टॉप को इंक्रीमेंट किया गया so that top will move on to the empty place. इसलिए यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट यूज हुआ है. मतलब बिफोर स्टोरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल top should shift to empty place. Remember when the stack was empty,
टॉप वाज सेट टू -1। हमने -1 ही क्यों लिया था? डेटा स्ट्रक्चर में आप इन चीजों को डिस्कस जरूर किए होंगे, लॉजिक्स को। ये सिंपल लॉजिक है, दैट इज व्हाई आई हैव कंसीडर्ड दिस एग्जांपल, क्योंकि इस प्रॉब्लम को आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ यू वुड हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड यूजिंग सी और C++ लैंग्वेज। राइट नाउ मैं उसी डिजाइन को यूजिंग OOPS अप्रोच जावा में हमने बनाया है। प्रॉब्लम सेम है, बट सिंपली कोड नया है और इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह इनकॉर्पोरेट किया गया है। नाउ तो यहाँ पे स्टैक फुल एक्सेप्शंस रेज हुआ। अब जो भी फंक्शंस स्टैक एक्सेप्शंस रेज करेगा, उस फंक्शंस के आगे डिक्लेयर करके यूजिंग थ्रोज कीवर्ड आपको उस एक्सेप्शंस क्लास को, उस एक्सेप्शंस को मेंशन करना होगा। दिस इज द यूज ऑफ थ्रोज कीवर्ड एंड थ्रो कीवर्ड। थ्रो का काम है एक्सेप्शंस को रेज करना, एंड थ्रोज का काम क्या है? उस एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करना। दैट it is declared that by using throws that whose functions may raise a stack full exceptions. So this is how the things are created. Okay, आप अगर नहीं देंगे different errors आएंगे जो हम लोग देख लेंगे। It's okay, बहुत बड़ी इसमें बात नहीं है। ठीक वैसे ही बात पॉप में भी आएगी। तो पॉप में हमारा एक्सेप्शंस कौन सा हो गया? स्टैक एम्प्टी एक्सेप्शंस, देख रहे हो ना, स्टैक एम्प्टी एक्सेप्शंस। पॉप में अब स्टैक खाली होगा, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा क्या चीज? रोज कौन सा? स्टैक एम्प्टी एक्सेप्शंस हमने लिख दिया। माय डिजाइन इज कंप्लीट। देख रहे हो, यहाँ पे डेटा रिटर्न होगी जो टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, एंड आफ्टर दैट द टॉप हैज टू कम डाउन, सो इट हैज टू बी डिक्रीमेंटेड। इसलिए यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट का यूज किया गया है। इस तरह से स्टैक हैव बीन क्रिएटेड कंप्लीटली यूजिंग OOPS डिजाइन, एंड हमने स्टैक को क्रिएट करने के लिए एरे का यूज किया है, और हमने एक्सेप्शंस, इसमें कस्टम एक्सेप्शंस का यूज हमने किया है, क्योंकि ऐसा बिल्ट इन एक्सेप्शन जावा में पहले से जितने भी बने होंगे हमारे सिचुएशंस को सूट नहीं करेंगे, तो वी क्रिएटेड आवर ओन एक्सेप्शंस। इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट आई हैव क्रिएटेड बोथ द कैटेगरीज, बट आई always love to create exceptions which belong to checked exceptions category. रीजन क्या है? जब हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे और अगर मान लो बाय मिस्टेक हमने एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं किया है अपने प्रोग्राम में, तो कंपाइलर विल रिफ्लेक्ट मी द एरर, एंड दैट मींस हैंडलिंग ऑफ दोज एरर बिकम्स कंपल्सरी। ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ना, लास्ट डे, कि जब हमने एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं किया तो we used to get error, kind of error, that exceptions must be thrown or caught. So that same situation we will see now also. इस तरह से stack got is ready. अब हम main functions लिखेंगे जहाँ पे हम इसको demonstrate करेंगे, है ना? Demonstrations of demo of custom exception. अब ये आपने देख ही लिया कि हमने बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था फॉर कीबोर्ड इनपुटिंग, हमने स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और हमने एक स्टैटिक मेनू भी क्रिएट किया फंक्शंस। इस मेनू का काम है कि जो ऑपरेशंस हम स्टैक को टेस्ट करने के लिए मेनू ड्रिवन एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे डिस्प्ले किया होगा ये सारे ऑपरेशंस। अगर हमको स्टैक में डेटा पुश करना है, वी विल प्रेस 1 बटन। अगर पॉप करना है, वी विल प्रेस 2। अगर कोई भी ऑपरेशंस नहीं करना है, वी विल प्रेस 0 एंड इंटर द ऑपरेशन कोड। कौन सा काम करना है उसके लिए है। तो हमने एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया है in order to check the whole thing. Now here we have main functions. Look at this. अब जरा हम ये थ्रोज को कमेंट बना के लिखते हैं। पहले हम कोई भी यहाँ पे डायरेक्टली देख रहे हो, अब हमने यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट किया। लुक एट दिस,
स्टैक की साइज हो गई 5, है ना। और ये इनफाइनाइट लूप में हमने एक प्रोग्राम बनाया है छोटा सा, हाईलाइट करके आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इतना ही छोटा सा है। बस नीचे चीजें कमेंट की हुई हैं जिसको कि हम बाद में यूज करेंगे, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल सी। अब अगर पूरा कोड कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि आज मेरा ये माय रिक्वेस्ट इज दैट each one of you should have honest participations and try to understand how the coding is being done. ये फील होता है कि you people, most of you do very less programming on system, which is very bad. It should be of very higher order. You are engineering students, so lightly work is not desirable. You should do more and more work. Now look at this. अगर चीजें क्लियर हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में एक प्रोसेस चलाया है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा while true, और स्विच के अंदर ये मेनू कॉल किया गया है, मेनू फंक्शंस। तो मेनू फंक्शंस के कोड को देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो, मेनू फंक्शन ये चीजों को डिस्प्ले करने के बाद ये ऑपरेशंस कोड इंटर होगा और ये ऑपरेशंस कोड वहां से रिटर्न कर देगा। अगर ऑपरेशन कोड 1 है तो ये केस 1 काम करेगा, नहीं तो केस 2 काम करेगा, नहीं तो 0 काम करेगा। if we press any other keyword by mistake, तो यहाँ पे wrong choice होगा। और ये भी जान रहे हो यहाँ पे भी एक्सेप्शन हैंडलिंग होना चाहिए, हमने आपके लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे सिर्फ 5 एक्सेप्शंस थ्रो किया जा रहा है, जबकि ये हमारा कन्वर्टर फंक्शंस भी रेज करता है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस याद होगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन इज अ प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, चीजें याद रखनी पड़ेगी मित्रों, फ्रेंड्स, आपको बाय हार्ट रखना होगा। अब बताएं ये कोड क्लियर है या और भी इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए बिफोर कंपाइलिंग? अभी हम कुछ भी कंपाइल नहीं कर रहे हैं और मेन का जो कोड है वो अभी अधूरा है, मतलब जहां पे स्टैक यूज की जा रही है अधूरी है। कंपाइल करके हम सर्टेन एरर्स को देख के समझ पाएंगे, फिर उसको हम आगे इसमें कोड में चेंजेस करेंगे। अशोक, यस सर। कोई भी इसमें Yes, कोड sir. समझने में कठिनाई नहीं सर, कोड समझने में कोई कठिनाई नहीं है। नहीं है ना? मेन को नहीं। समझ रहे हो? मेन में हमने क्या लिखा है सर फाइनाइट लूप में एक स्विच केस है और स्विच के अंदर मेनू कॉल किया गया है। स्टैटिक फंक्शन आप ऊपर बनाया है। यस सर। हाँ सर। स्टैटिक फंक्शन बनाया है, वेरी गुड। स्टैटिक फंक्शंस आर मेन भी स्टैटिक और फंक्शन भी स्टैटिक है, तो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में स्टैटिक फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। यस। और हमने इनपुट के लिए बफर रीडर का ऑब्जेक्ट भी स्टैटिक बना लिया है। सो बी आर ऑब्जेक्ट को हम इस पूरे फंक्शंस में क्लास के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं, कस्टम एक्सेप्शंस डेमो क्लास के अंदर। नाउ लेट मी कंपाइल। Ashok and Akshita, you two are very seriously participating, and I expect the same kind of motivations from all the people, all the other attendees. Okay, let me compile and see the errors what we are getting. ये तो यहाँ पे दूसरा ही illegal start type error आ रहा है else के पास, और यहाँ ओपन ब्रेस छूट गया है, इसलिए ये तो एक डिफरेंट सिंटैक्टिकल एरर हो गया, ये डिजायरेबल नहीं था। हाँ, नाउ दिस एरर, अब हम इस स्क्रीन को जरा फुल करता हूं। अब एरर नंबर 1 को देखिए। सबसे पहले आपको एरर आ रहे हैं 77 लाइन में, क्या कह रहा है? अनरिपोर्टेड एक्सेप्शंस, IO एक्सेप्शंस मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन।
अब लेट्स गो टू लाइन नंबर 77 and check it out. Look, line number 77 में क्या है? Single. In line number 77, we have a menu function. Remember, और मेनू फंक्शंस को जाके देखिए, मेनू फंक्शंस में क्या लिखा हुआ है? इट थ्रोज आईओ एक्सेप्शंस। मतलब क्या हो गया? मेनू फंक्शंस के अंदर निश्चित तौर पे एक आईओ एक्सेप्शंस ऑब्जेक्ट जनरेट होके फेंके जा रहे हैं, फेंक हो रहे हैं। और आईओ एक्सेप्शन जनरेट कौन करता है? रीड लाइन फंक्शन, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। और वहां पे तो ट्राई कैच से हैंडल करना था, वह हैंडल नहीं किया। Either if you feel you handle the exceptions, if you do not feel you just throw it. तो मेनू ने सोचा कि मैं क्यों हैंडल करूं, जो मेरे को कॉल करेगा मैं उसको उस एरर ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, वो अपना हैंडल करे, मेरे को नहीं केयर करना है। तो मेनू एक्सेप्शंस, मेनू क्लास, मेनू फंक्शंस कॉल कहां से हो रहा है? स्विच के अंदर से। इसका मतलब क्या हो गया? या तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को ट्राई कैच के अंदर लिखना चाहिए था, जो अच्छा होता, लेकिन काश वैसा हम करें तो क्या हम भी यहाँ से थ्रो कर दें, जो मैंने कमेंट बना के यहाँ छोड़ दिया है? शुड आई ऑल्सो थ्रो इट? और ये तो अब लास्ट है। अब मेन भी अगर थ्रो करेगा तो किसको मिलेगा? अल्टीमेटली सिस्टम को। तो दैट इज ऑफ नो यूज। हमारे प्रोग्राम का ये अब ये अंतिम पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं इसको हैंडल होना चाहिए था। तो इट इज बेटर वी विल हैंडल इट रादर देन थ्रोइंग। तो हैंडल कैसे करेंगे? इसका मतलब ये कोड हमारा जनरेट कर रहा है, हम लिखेंगे यहाँ पे try ट्राई। ट्राई का बॉडी ओपन हुआ, थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं, एंड स्विच जब यहाँ पे मेरा ये क्लोज हो रहा है, ये यहाँ पे ट्राई लुक एट दिस। हमने जरा एक एक टैब स्पेस करके प्रॉपर अलाइन कर लिया। मैं यूं ही उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं अब ये लास्ट मोमेंट है, हम यहाँ पे इसको कैच करेंगे। तो ट्राई फॉलोड बाय कैच। हमारे पास ट्राई कैच कहीं नीचे है ही, मैं इस कैच को यहाँ से कट करके और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। This is why I am doing this kind of code, so that you people should get more and more interest and understand. चीजें लिखी हुई तो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। Now look at this. ट्राई में मैंने हैंडल कर लिया, और अगर उस एरर मैसेज को दिखाना है तो system.out.println में हम यहाँ पे एक एरर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लेते हैं। मान लो E1 हम लिखते हैं एरर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने पैरामीटर्स E1 कर दिया। इस तरह से नाउ एरर नंबर 77 जो आ रहा था वो हैंडल हो गया। फिर एरर नंबर 80 भी आ रहा था, लाइन नंबर 80 में भी सेम एरर था, तो लाइन नंबर 80 भी तो इसी के अंदर था। ये पूरा चीज तो एक ही ट्राई के अंदर चला गया, तो कहीं से भी अगर एरर हो गए तो ये एरर जनरेट कर देगा। लेट मी कंपाइल। अब देख रहे हो आईओ एक्सेप्शंस वाले लाइन तो हट गए। यस सर, हट गए। अब देखो कौन सा एरर आया, इसको जरा पढ़ो। स्टैकफुल एक्सेप्शन, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शंस, स्टैकफुल एक्सेप्शंस। अब गौर से देखो, इस ट्राई के अंदर जितने काम हो रहे हैं उसमें दो ऐसा काम जो स्टैक के साथ हो रहा है। केस 1 में पुश जनरेट कर रहा है किस एक्सेप्शंस को? स्टैकफुल एक्सेप्शंस को। एंड पॉप किसको जनरेट कर रहा है? स्टैक एम्प्टी को। लेकिन हमारा कंपाइलर एरर किसको दिखा रहा है? ओनली स्टैकफुल एक्सेप्शंस को।
लेकिन कंपाइलर स्टैक एम्प्टी को नहीं दिखा रहा है. डू यू नो व्हाई? तो क्योंकि कोड लाइन बाय लाइन चल रहा होगा तो पहली दफा ही उसको एरर दिख गया होगा तो वहीं से। नहीं, मैं स्क्रीन को जरा ऊपर ले चलता हूं. दो एक कस्टम एक्सेप्शंस हम लोगों ने क्रिएट किया. लुक एट दिस. बिकॉज ऑफ कैटेगरी. ओ हाँ यस सर, गॉट इट? यस अब सर। देखो यहाँ से भी हम रन टाइम हटा रहे हैं. नाउ both will become of category checked exceptions, and this is what is अब now how many errors, and उस error को आप पढ़ेंगे. What you can visualize, line number 83 generates stack full exceptions, line number 86 generates stack empty exceptions. This is what I wanted to get the answers, and Akshita was not clear at that moment. Now Akshita, can you see Yes, sir. what is the difference we got between checked and Yes, unchecked? sir. मतलब कंपाइलेशन टाइम पे ही कंपाइलर हमें ये बता देगा कि दिस एक्सेप्शंस गाइस वी हैवंट हैंडल्ड इन आवर प्रोग्राम. Yes, sir. तो कौन सा अच्छा हुआ, चेक्ड या अनचेक्ड? Checked. चेक्ड. गुड. अब अगर अनचेक्ड करते हैं तो रन टाइम पे तो कोई भी एरर जनरेट होगा. नाउ लेट मी हैव दिस रन टाइम एक्सेप्शंस. तो कमेंट में भी यहाँ लिखा हुआ है. मैं दोनों इसलिए बनाया हूं क्योंकि आपको दोनों क्रिएट करना बता रहा. नाउ व्हेन आई डू द कंपाइलेशन, ओनली वन एरर. अब मान लो ऊपर वाले को भी, दैट इज स्टैकफुल, जो हमारा अभी चेक्ड एक्सेप्शंस है, उसको भी हम अनचेक्ड एक्सेप्शंस कर देते हैं. एंड नाउ लेट अस कंपाइल. डू वी गेट एनी एरर? नो, क्योंकि अब तो कंपाइलर देख लिया अच्छा ये दोनों अनचेक्ड है, लेट इट बी. तो हु केयर्स? आपको नहीं जरूरत है, इसलिए आपने डिजाइन किया. अब अगर इस एरर के, अब इस कोड को ही अगर हम, एरर फ्री है तो वी कैन एग्जीक्यूट इट. हम यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं. लुक, माय प्रोग्राम इज रनिंग. अब जरा पॉप करना हो तो हम कौन सा ऑपरेशन कोड प्रेस करेंगे? 2. तो मेनू फंक्शन जो हमने क्रिएट किया था, हमने कौन कौन सा ऑपरेशंस करना, विच ऑल ऑपरेशंस माय एप्लीकेशंस इज गोइंग टू परफॉर्म, वो हमने मेनू में डिजाइन करके रख दिया. हमने टाइटल दिया कस्टम एक्सेप्शंस डेमो, पुश 1 पॉप 2 एग्जिट 0. मतलब जो काम करना है उस काम को करने के मेनू में, जैसे हम होटल में जाते हैं ना खाना बुक करने, तो आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, हम उसको बोलेंगे भाई बुक मी आइटम नंबर 2, गेट मी दैट. तो उसी तरह से यहाँ पे हो गया. दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ मेनू, है ना. अब सपोज मैं यहाँ पे हम 1 2 0 कोई भी प्रेस कर सकते हैं. मानो हमने 0 प्रेस कर दिया तो क्या हो गया? 0 किसके लिए कोड था? एग्जिट होने के लिए, इसलिए एग्जिट हो गया प्रोग्राम. लेट मी री एग्जीक्यूट इट. each of you should participate. Every one of you should participate. Just a moment. Okay. Now let me press 2 and see what happens. देखो यहाँ पे क्या हुआ, पढ़ो जरा. Akshita, are you getting what error we got? Runtime error. Yes, sir. क्या लिखा Empty हुआ है? stack. Stack is Exception empty. in stack is empty. अब ये stack is empty मैसेज क्यों डिस्प्ले हुआ? सोचो. Correct, क्योंकि sir. टू स्ट्रिंग फंक्शन था वहां पे ना, Yes, sir. वो रिटर्न कर रहा था स्टैक इज एम्प्टी.
and that is why we are having, क्योंकि उस लाइन में स्टैक एम्प्टी मैसेज एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। हमारा लाइन नंबर भी यहाँ दिख रहा है, मेन के अंदर लाइन नंबर 86 पे है ना। Yes, sir. अगर हमारा ये हैंडल प्रोग्राम में तो हम लोगों ने हैंडल नहीं किया, तो अब देखो यहाँ पे गौर से, मैंने क्या कहा था, आपकी जो छोटी सी मिस्टेक थी, कोई भी एक्सेप्शन हो दैट गेट्स जनरेटेड एट रन टाइम, दैट इज वन थिंग, बट दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि व्हेन वी क्रिएट कस्टम एक्सेप्शंस, या मैं करूं या ऑलरेडी जावा में प्रीडिफाइंड है, अगर एक्सेप्शंस चेक्ड एक्सेप्शंस कैटेगरी के हैं तो आवर कंपाइलर, जावा कंपाइलर विल फोर्स यू टू हैंडल दोज एक्सेप्शंस। लेकिन अनचेक्ड है तो हम बाईपास कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी अगर करें तो हमारा प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो नहीं हो रहा है। इसलिए हम एक एक्सेप्शंस को चेक्ड रखते हैं और एक को अनचेक्ड रखते हैं आपको दिखाने के लिए। बट जब आप चीजों को समझ जाएं तो मेरा सजेशन ये होगा कि जब हम कस्टम एक्सेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वी आर कीपिंग आवर डिजाइन सो ब्यूटीफुल दैट we are so much concerned that we are interested in handling each and every runtime errors what get generated during execution of the program so carefully. तो जाहिर सी बात है, if exceptions have been created of so much great what is that seriousness, then it is also desirable that they should be handled in our program carefully. तो जाहिर सी बात है, it should be under the category of checked exceptions. That will be better, guys. Okay, so अब हम जरा आगे की ओर बढ़ते हैं और जरा उन चीजों को हैंडल करते हैं। तो हैंडल करने के लिए मेन, अब देखो ये ट्राई के अंदर तो हमने एक कैच रख लिया जो हैंडल कर लिया। अब हमने, चूंकि पूरे कोड को मैंने एक ही ट्राई के अंदर रख दिया है, तो ट्राई फॉलोड बाय मेनी कैचेस। अब एक कैच को कर देते हैं, कौन सा एक्सेप्शंस कर दें, स्टैक फुल था ना, स्टैक फुल एक्सेप्शंस। तो हमने स्टैक फुल एक्सेप्शंस कर दिया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया E2, और यहाँ पे हमने E2 को डिस्प्ले किया। ठीक उसी तरह से तीसरा एक्सेप्शंस है कौन सा, E3 मैंने कर दिया और यहाँ पे E3 हो गया, और स्टैक फुल के जगह पे क्या हो जाएगा, स्टैक EMPTY। all the exceptions we have, all the three exceptions we have handled. Finally, ऐसा हमको कोई वर्क दिख नहीं रहा है, let me compile and re-execute. There is no error, let me execute. अब सबसे पहले हम जरा देखते हैं 2 को प्रेस करके what happens. Look, मैसेज आप जरा देखिए, स्टैक इज एम्प्टी आ रही है, और उसके बाद देखो लूप रिपीट हो रहा है, इसलिए लूप रिपीट हो गया एंड फिर से वो मेनू का कोड डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे देखा आपने हैंडल करने का क्या फायदा हुआ और हैंडल नहीं करने का क्या नुकसान था। अनुष्का गर्ग, can you hear me? प्रखर, प्रखर, तो क्या 2 ही लोग लाइव हो? सर एक डाउट था सर मेरा। आप बताइए। हाँ सर, जैसे आप स्मूथ डिजाइन का बात कर रहे थे, हाँ तो जैसे सर जो आप ट्राई के बाद जो कैच लिखे हैं वो लास्ट में लिखे हैं सर, आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक जो है उसको यस, आपका पॉइंट सही है, हम लोग वहां भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं अपने कोड को सिंपल रखना चाह रहा हूँ। जी सर, इट इज बिकॉज ऑफ दैट।
ओके आप ओके सर एग्जैक्टली अगर उसी केस में रखना चाहेंगे कि इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर हैविंग that error, and in that place itself you are trying to demonstrate or display, you can do so. क्योंकि मैं लेस कोड को रखना चाह रहा हूं, that is because ओके ओके परफेक्टली फाइन तो मेरा पॉइंट ये क्लियर हुआ ना कि अगर हमने एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं किया था और किया है, दोनों में फर्क देख रहे हो. वंस द एक्सेप्शन इज हैंडल्ड, प्रोग्राम इज नॉर्मली फ्लोइंग. एरर तो दिख रहा है ना, स्टैक इज एम्प्टी, लेकिन वो एरर मैसेज दिखाने के बाद प्रोग्राम मेरा आगे काम कर रहा है. लेकिन अगर हम हैंडल नहीं करेंगे तो रन टाइम एरर जनरेट होने के बाद हमारा प्रोग्राम प्री मैच्योरली टर्मिनेट कर दी जाएगी. आर यू गेटिंग, अंशिका? Yes, sir. हैंडल करने और नहीं करने में डिफरेंस समझ में आई? Yes, sir. तो ओनली अशोक एंड अक्षिता, नॉट अंशिका, सॉरी, अक्षिता. I was mistaking from that point of view from the beginning itself. Anushka, are you there? आप लोग अभी कहाँ हॉस्टल में हो? अशोक, सर हम कॉलेज तो अभी घर आपकी कॉलेज खुली हुई है, बंद है? सर हम तो घर पे हैं सर अच्छा, घर पे हो. तो अभी आपकी कॉलेज बंद है क्या? सर कॉलेज खुली हुई है लेकिन होली की छुट्टियों पे आए हुए थे तो अभी थोड़ा घर पे ही है. आप लोग ने पढ़ा नहीं है? क्या नाम हुआ आपका? श्लोक. यस सर, श्लोक. तो टिल लास्ट क्लास जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे, उन सारे टॉपिक को क्या आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया सिस्टम पर? सर किया था, मेरी बीच में एक क्लास छूट गई थी. उस दिन मैं ट्रेवलिंग पे था तो मैंने सर को मैसेज कर दिया था. वो क्लास नहीं हो पाई थी इनहेरिटेंस वाली, बाकियों में था. कोई बात नहीं है. तो कल व्हाट्सएप पे देखे होंगे ना, मैंने सारे क्लासेस के Yes, कंटेंट्स sir. को शेयर कर दी. यस सर. डे 1 तो फर्स्ट डे तो कुछ हुई नहीं थी, दैट वाज ओनली इंट्रो. एंड डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, आज तो हमारा 5th डे है. और ये बहुत Yes. इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है. और जब तक ये कॉन्सेप्ट हम लोग का नहीं कंप्लीट होता है, वी कैनॉट अंडरस्टैंड और वी कैनॉट क्रिएट स्प्रिंग बूट्स. अभी बूट को पढ़ने के लिए तो हमें 4-5 दिन बहुत मेहनत करना है, और डेली आपको ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है. और समझ लो कि आगे जितनी भी कोडिंग होगी, हमें ब्यूटीफुल तरीके से अपने एक्सेप्शंस हैंडलिंग को क्रिएट करते हुए चीजों को करनी होगी. और एनीवेज, तो आई होप श्लोक यू विल डू इट. यस सर. सर आई ट्राइड दिस वन यस्टरडे एज वेल, द ट्राई कैच वन. और आप करें, और फिर जो डिफिकल्टीज हो आप निश्चित तौर पे शेयर करें. अनलेस इफ आई क्रिएट इंटरेस्ट, you will not feel to do. तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है. और जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं. प्रभाकर, दिशा, अच्छा तो ठीक है. अभी तो हम लोगों ने डायरेक्ट 0 किया. ये देख रही है मेनू ड्रिवन, चूंकि वो इनफाइनाइट लूप में हमारी कोड चल रही थी. सो वंस अगेन दैट मेनूज कंटेंट इज बीइंग विजिबल, हम लोग वहां देख रहे हैं. अब हम स्टैक में एक डेटा पुश करना चाह रहे हैं. अभी तक मेरे स्टैक में कुछ भी नहीं है, रिमेम्बर. अभी हमसे पूछ रहा है कि इंटर द नंबर टू बी पुश्ड. मान लो स्टैक में मैंने फर्स्ट आइटम रखा 100.
अभी हमारे स्टैक में एक ही आइटम है 100, फिर से मैं ये स्टैक में एक और आइटम पुश कर रहा हूं, मान लो 200। अब जरा सोचो तो स्टैक में सबसे टॉप मोस्ट आइटम कौन सा है? स्लोक। स्लोक विच इज द टॉप मोस्ट आइटम ऑफ द सर स्टैक? 200 200। गुड। तो अगर हम यहाँ पे पॉप करें तो पॉप के लिए हमारे पास ऑप्शन 2 है, तो हमें 200 मिलनी चाहिए। तो पॉप्ड आइटम मैसेज दिख रहा है ना 200। अब स्टैक में ओनली वन आइटम इज लेफ्ट, दैट इज 100। वंस अगेन आई डू पुश ऑपरेशंस। पुश के लिए हमारे पास 2 है। ये थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करते हैं, वो नीचे गया हुआ है। चलिए चीजें दिख रही हैं। ओके, नाउ वंस अगेन आई एम डूइंग वन पुश, सॉरी पॉप। तो पॉप के लिए 2 प्रेस करेंगे। अभी स्टैक से कौन सा निकलेगा अक्षिता? सर 100। 100। गुड। तो 100 मैसेज दिख रही है, पॉप्ड आइटम 100। अब अगर फिर से पॉप करेंगे तो क्या होगा? इफ आई Error. डू, हाँ श्लोक बोलिए। सर एरर आ जाएगी, मतलब एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जनरेट होगा। अब तो तुम कॉन्सेप्ट समझ गए, वेरी गुड। तो अभी हम देख लो, यहाँ पे आ गई ना, स्टैक इज एम्प्टी, ये एक्सेप्शन रेज हुआ एंड दैट एरर इज बीइंग डिस्प्लेड। अब स्टैक की साइज मेरी 5 थी। स्टैक फुल तभी आएगा जब हम 5 डेटा पुश करके देंगे और 6 डेटा पुश करने जाएंगे। अभी तो मेरा स्टैक खाली है। नाउ माई 1 2 3 4 5 नंबर हम स्टैक में पुश करने जा रहे हैं। देखो 5 आइटम हमने पुश कर दिया है, अब 6 आइटम पुश करने जा रहे हैं। ये तो हमसे आइटम मांगेगा ही, 6 दिए। अब चूंकि 5 ही स्टैक की जगह थी, देयर वेर ओनली 5 स्पेसेस, आई एम गोइंग टू स्टैक फुल एक्सेप्शंस आ गया। इसका मतलब वो हमारा फेल हो गया, मैसेज नहीं हो पाया। तो बोथ स्टैक फुल एक्सेप्शंस एज वेल एज स्टैक एम्प्टी एक्सेप्शंस, कस्टम एक्सेप्शन जो था हमारा प्रॉपर्ली काम कर रहा है ना। तो कंपाइलेशन एरर से हम लोग समझने की कोशिश किए थे, विच वन विल बी बेटर टू क्रिएट, है ना, कस्टम ये चेक्ड एक्सेप्शंस और अनचेक्ड एक्सेप्शंस। तो दोनों में जो बेसिक टेक्निकल डिफरेंसेस है कि व्हेन आवर एक्सेप्शंस इज ऑफ checked category, then it is mandatory, compiler will force us to handle those exceptions within our Java code. इसलिए वहां पे एरर आता है, they must be caught or thrown। जब कभी ऐसा एरर आए, समझ जाओ जिसके बारे में आप नहीं भी जानते हैं, तो एक्सेप्शंस क्लास का नाम उस एरर में दिखेगा आपको, जो कि हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके थे। अभी हम फिर से उसको रिपीट कर दे रहे हैं। हम लोग उसको कमेंट करना होगा। अब अगर मान लो हम प्रोग्राम को यहाँ से टर्मिनेट करना चाहेंगे तो एग्जिट के लिए मेरा ऑपरेशंस कौन सा है? वी हैव ऑपरेशंस 0। तो 0 हमने प्रेस किया, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। तो इनफाइनाइट लूप में ये लूप चल रही है, ट्रू एंड फॉल्स, दो आपके जावा में बुलियन टाइप के लिटरल्स होते हैं, है ना। बुलियन डेटा टाइप आपका सी या सी प्लस में तो नहीं होता है। वहां पे हम इनफाइनाइट लूप में आमतौर पे कोई भी नॉन जीरो नंबर का यूज करते हैं, जैसे वाइल 1। तो जावा में ये यहाँ पे वैसा नहीं लिखा जाएगा, वाइल ट्रू लिखा जाएगा, है ना। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने अगर स्टैक एम्प्टी को कमेंट कर दिया एंड फिर कंपाइल करते हैं, आर वी गेटिंग एनी एरर? आंसर नो। क्यों? स्टैक एम्प्टी एक्सेप्शंस को मैंने अभी हैंडल नहीं किया है विद इन आवर जावा कोड, स्टिल वी डोंट गेट एनी कंपाइलेशन एरर। व्हाई? लोग, इट इज बिकॉज हमने जो कस्टम, हाँ ये अनचेक्ड कैटेगरी का है ना। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम इस लाइन को भी कमेंट करते हैं, दैट इज वी आर नॉट गोइंग टू कैच स्टैक फुल एक्सेप्शंस एंड वी आर कंपाइलिंग, देन वी आर गेटिंग एरर। एरर में देख रहे हो ना,
एरर में यहाँ पे अनरिपोर्टेड एक्सेप्शंस, स्टैकफुल एक्सेप्शंस, तो ये स्टैकफुल एक्सेप्शन जो होगा वो एक्सेप्शंस क्लास का नाम होगा। और आगे लिखा हुआ है मस्ट बी, देख रहे हो, मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। या तो आप उसको कैच करो और नहीं तो जिस फंक्शंस ने इसको के अंदर ये एक्सेप्शंस रिपोर्टेड है वो फंक्शन इस तरह से आगे लिख दे थ्रोज, और यहाँ पे एक्सेप्शन जो कमेंट लगा हुआ है। अब स्टैकफुल तो है नहीं, उसका नाम हमने चेंज कर दिया था स्टैकफुल, EXTEPTION, स्टैकफुल एक्सेप्शंस। लेकिन हमें ऐसा रखना नहीं है, मैं कमेंट बना के उसको छोड़ दिया हूँ कि ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाहिए। करना हमेशा कैच ही है। अगर आप वैसा करोगे तो अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम दैट इज एट रन टाइम अगर वो वैसे एरर रेज हो जाते हैं तो आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशंस कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही वो एक्सेप्शंस अकर होगी आपकी रेज हो जाएगी। अब देख नहीं रहे, मेनू में ही हम लोग जो एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, गौर से देखो ना मेनू फंक्शंस को। मेनू फंक्शंस के अंदर जितने भी एरर के टाइप जनरेट हो रहे हैं, मेनू फंक्शंस में आप देख लो गौर से, रीड लाइन फंक्शंस जनरेट्स आईओ एक्सेप्शंस, तो मेनू फंक्शंस में तो मैंने लिख दिया थ्रोज आईओ एक्सेप्शंस। लेकिन ये पार्सेंट फंक्शन जो है, ये कन्वर्टर फंक्शंस जिसका काम है रैपर क्लास के अंदर जो पार्सेंट स्टैटिक मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, that is being called in order to convert a string into its equivalent int type, int data. That is why इस functions का return type int है। अगर हम इस प्रोग्राम को जरा रन करते हैं तो सबसे पहले रन करने से पहले तो ये कंपाइलेशन एरर हमें हटाना होगा। चलो मैंने दोनों को हैंडल कर लिया, ठीक है ना, मैंने यहाँ दोनों को रखा है in order to just teach you. Now let me recompile and execute. अब जरा देखो, जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ये कह रहा है कि इंटर द ऑपरेशन कोड, और मैंने अगर ऑपरेशन कोड देने में ही कोई गड़बड़ी कर दी, देख लो क्या हुआ। लुक एट दिस, व्हाट हैपेंड। क्योंकि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस दिख रहा है ना उस लाइन में, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस, ये आपको गौर से देखेंगे तो लाइन नंबर भी दिख जाएगा कि किस लाइन पे ये एरर जनरेट हुआ है। फॉर इनपुटिंग ए स्ट्रिंग लाइन नंबर 65 सबसे पहले दे रहा है। लाइन नंबर 65 पे आप चलेंगे तो जरा चलिए, लेट्स सी। दैट इज व्हाई अब मैंने बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया है। अब आपके सामने करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देख लो लाइन नंबर 65 यहाँ जो है ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस, ये जो है यहाँ पे ये लाइन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस रेज कर रहा है, और यहाँ पे इस फंक्शंस के अंदर न तो थ्रो किया गया है न ही कैच की गई है, आइदर कॉट और थ्रोन। लेकिन अभी तो एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस कैसा है, चेक्ड कैटेगरी का है या अनचेक्ड है। तो लोग अनचेक्ड है सर। अनचेक्ड है, तो इस एरर को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, या तो ट्राई कैच करें नहीं तो उस फंक्शंस को कह दें थ्रो करके। नाम यहाँ क्या लिखना होगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस। एक बार हम प्रोग्राम को रन करेंगे और वहां से हम उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक ना। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, देख रहे हो, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस को यहाँ पे पूरी जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हम नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस को यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। लिखेंगे तो क्यों सिंटेक्स एरर हो जाएगी। परेशानी, लेट्स सी आया या नहीं आया। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इस तरह से ये मेनू क्लास जो है, इट इज inside menu function, not class, two different types of errors are getting generated, IO exceptions and number format exceptions, है ना। अब क्या हम लोगों ने यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस को तो हैंडल किया ही नहीं है ना। लेट मी सी, लेट मी कंपाइल एंड रन, क्योंकि तो अनचेक्ड कैटेगरी का है इसलिए कंपाइलर तो कुछ नहीं कहेगा, कहेगा सक्सेस, गो। नाउ आई हैव executed. Again, I am giving wrong inputs. Now see, still the error we are getting because menu functions ने भी throw कर दिया,
तो अल्टीमेटली वो एरर ऑब्जेक्ट जंप करके कहाँ पे आ गया, मेन फंक्शंस के अंदर, इधर यहाँ पे जहां से वो मेनू कॉल हुआ होगा, दैट एरर ऑब्जेक्ट कम्स हियर। तो यहाँ पे तो उसको हैंडल नहीं किया गया है, नाउ आई एम हैंडलिंग इट, लुक एट दिस लाइक दिस। तो हमने इसको हैंडल कर लिया। तो इस तरह से हमने सारे एक्सेप्शंस को हैंडल कर लिया है। हम यहाँ पे कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हमने एक E4, हालांकि सेम नेम भी रह ही सकता है, बट स्टिल डोंट गेट कंफ्यूज्ड। है ना? नाउ लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, डू द मिस्टेक, लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग। अब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। जो एरर आ रही है वो एरर मैसेज दिख रहा है, बट आवर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग इन नॉर्मल वे। उस लाइन पे एरर आ गया, नो प्रॉब्लम, आगे कंटिन्यू कर रहा है, फिर से इनपुट करो, फिर जो काम करना है करो, है ना? तो ये इनपुट एरर ही आ गया। अगर हम 1 2 3 के 0 2 1 के अलावा कोई भी दूसरा अगर बटन प्रेस करें, जैसे मान लो इनपुट तो सही है, ये रॉन्ग चॉइस, ये रॉन्ग चॉइस मैसेज कहाँ से आ रहा है? हमारा केस में जो डिफॉल्ट लिखा हुआ था ना, केस स्विच के अंदर 3 ही केस थे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 0, एंड द लास्टली डिफॉल्ट। If other than any of these 3 cases we are entering, we will get into that. So what about this concept? अब जरा हम आपको अपने कोड पे ले चलते हैं, है ना? अभी जरा हम अब यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे, we have terminated. Now अब आप देखिए डिफरेंट 2 एक्सेप्शंस को एक साथ हम रख, ये 2 हो गया आईओ एक्सेप्शंस एंड नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस। मेरे तो ऊपर से आ रहे हैं, उस दोनों को मैं पहले एक साथ रख लेता हूं, है ना? जरा कंपाइल करते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ये ई तो इसके अंदर लिखा हुआ है, फिर ये ई इसके अंदर है, तो दोनों ऊपर ले लिए। जो आपके प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस थे, इनबिल्ट एक्सेप्शंस जो जावा लाइब्रेरी के अंदर बना हुआ है, एक स्पेस यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। तो 2 एक्सेप्शंस वी हैव यूज्ड एंड 2 एक्सेप्शंस ये हमारा है, ये कस्टम एक्सेप्शंस है। तो जावा के जो 2 लाइब्रेरी एक्सेप्शंस, इनबिल्ट बिल्ट इन एक्सेप्शंस व्हाट वी आर यूजिंग, in out of these 2 IO exceptions belongs to कौन सा कैटेगरी? checked या unchecked? IO exceptions belongs to checked exceptions. Number format exceptions belongs to unchecked exceptions. ये predefined exceptions है जो जावा की लाइब्रेरी में बनी हुई है। Now we have created our 2 exceptions, stack full exceptions and stack empty exceptions. Stack full exceptions हमने create किया है of checked category and stack empty हमने create किया है unchecked category. तो unchecked create करने के लिए और checked create करने के लिए क्या करना है? That already बहुत simple है ना? जो ऊपर में हमारा piece of code में दिख रहा है ना? stack full exceptions and stack empty exceptions, ये 2 exceptions है। अगर हमें checked exceptions create करना है, then it must be inherited from exceptions class। मतलब exceptions class का parent class exceptions होगा, then it will belong to the category of checked exceptions। अगर exceptions class के parent runtime exceptions होंगे, then it will belong to unchecked exceptions। Is that clear? Now Yes, sir. Yes, sir. पूछिए, any kind of doubt?
लोग सब कुछ सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, आप चीजों को करिए। आज की जो कोड है पीपीटी एज वेल एज जो हमारा जावा कोड है, ये दोनों को मैं अभी थोड़ी देर में मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। और I have tried my best to teach the complete concept of exceptions handling of Java language, either creating our own exceptions and categorizing। कल के आप स्लाइड को देखेंगे, उस पे आपको पूरा exceptions का क्लास हायरार्की डायग्राम मैंने प्लेस किया है ना। और ऑब्जेक्ट आपका टॉप मोस्ट क्लास हो गया। कल कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे एंड जो जावा के जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो एक तरह से कह सकते हो कि हॉट फीचर ऑफ जावा लैंग्वेज जो है, दैट इज मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज व्हिच इज कॉल्ड थ्रेड्स। वो मे भी कल कर पाऊंगा, हम देख लेते हैं, कल उसको कर लेंगे। या फिर कुछ बहुत छोटी छोटी मिसलेनियस टॉपिक है, थ्रेड एक दिन की टॉपिक नहीं होगी, कल हम शुरू भी करेंगे। और कुछ 2-4 बहुत छोटे छोटे चीज हैं। अब जैसे मान लो इसमें हमने अपने प्रोग्राम में पैकेज का यूज किया है। आप जानते हैं व्हाट इज पैकेज? Can anyone tell me what is package? See, you can read the definitions, but practically what happens, that I will tell you. It is where we group similar type of classes. Okay, practically if I have this line, what happens? Any idea? It's a folder. You can say that a folder is there in which. Yeah, actually it is a folder, right? So when I have this code, then after compilations this Java program क्या होती है कि जहां पे हमारा जावा प्रोग्राम है, उस फोल्डर के अंदर एक ph नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और ph.classes, इसका मतलब ph फोल्डर के अंदर एक क्लासेस फोल्डर होगा। एंड दैट क्लासेस फोल्डर के अंदर इस प्रोग्राम को जो हम कंपाइल करेंगे, उसके सारे क्लास फाइल्स होंगे। देख रहे हैं इस प्रोग्राम में कितने क्लास फाइल्स हैं? जितने क्लास होंगे, फॉर एवरी क्लास एक अलग अलग क्लास फाइल क्रिएट होगा। तो सबसे पहला क्लास है स्टैकफुल एक्सेप्शंस, दूसरा सेकंड है स्टैक एम्प्टी एक्सेप्शंस, थर्ड है स्टैक, एंड फोर्थ है कस्टम एक्सेप्शंस डेमो। 4 क्लास आप दिख रहे हो। तो once this program is compiled, 4 classes, और देखो गौर से, मैं अपने फोल्डर को आपको दिखा रहा हूं, देख रहे हो ना, ये हमारा ये 5 कस्टम एक्सेप्शंस, ये सारे फाइल को मैंने आपको शेयर कर दी है। और जैसे जैसे हमारे प्रोग्रेस हो रहा है, डे 5, डे 6 एंड सो ऑन, अगर एक ही दिन में कई एक सारा फाइल है, तो इस तरह से मैंने नंबरिंग कन्वेंशंस डाला है ना। डे 4 नो एक्सेप्शंस का मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज नहीं हुई है, और जिसमें नो वर्ड हट गया उसका इक्विवेलेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग की फाइल है जिसमें एक्सेप्शन हैंडल की गई है। दैट काइंड ऑफ कन्वेंशंस आई हैव यूज्ड इन दिस नेमिंग ऑफ द फाइल, तो आपको समझ में आ सकती है। अब लुक एट दिस, अब हर क्लास में मैंने सेम पैकेज लाइन का यूज किया है। तो इस तरह से ph फोल्डर के अंदर, क्लासेस फोल्डर के अंदर इतने सारे जो क्लास किधर से आ गए, मैंने जितना भी डे 1, डे 2, डे 3 जितना भी किया है सबको तो मैं यही लिखा हूँ। तो डे 5 वाले में मेरा क्या क्या क्लास था, लुक एट दिस, एक स्टैक क्लास था, है ना। स्टैक एम्प्टी मैंने पहले क्रिएट किया था, जिसका नाम बदल के मैंने क्या कर दिया था, स्टैक। ऐसा करते हैं ना, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पे शिफ्ट डेल, मैं सारे को डिलीट कर दिया। ओके, नाउ लेट मी रिकम्पाइल। अब देख लो गौर से, ये दोनों स्क्रीन तुम्हारे सामने सामने दिख रही है ना। श्लोक, व्हेन आई कंपाइल जावा, देख लो ना तुम्हारे सामने ये 5 क्लास क्रिएट हुआ है। तो जितनी भी क्लासेस हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर है, those many class file gets created and stored into that.
तो राइटिंग पैकेज इज अ गुड हैबिट. इससे क्या फायदा होता है कि हमारे सोर्स कोड देख रहे हो, सोर्स कोड मेरा कहाँ है, यहाँ पे, एंड जहां पे सोर्स कोड है उसी के अंदर एक पीएच फोल्डर हो गया, उसके अंदर क्लासेस सब फोल्डर हो गए. तो अलग अलग हम पैकेज स्पेसिफाई कर सकते थे अलग अलग फाइल्स के लिए. मैंने एक ही कॉमन रख दिया है, कीपिंग इन माइंड दैट आफ्टर कंपाइलेशन ऑल द क्लास फाइल will be put automatically into this particular folder, and for this what we have the concept called package. Is that clear? Yes, sir. Any confusions किसी को भी है? आप ज्यादा से ज्यादा कोड करें, no matter you are at home or you are at college, wherever you are. जो मैं कह रहा हूँ आप उसको करिए, and the best result we can get at the end of this course. No doubt about it, but only the thing which I expect from you guys that you please do those all the codes what already I have shared, and some new ideas also you can create. थोड़ी सी 2-4 क्लास के बाद मैं एक लिस्ट ऑफ 4 कुछ क्वेश्चंस भी पोस्ट कर दूंगा, so that you can design them and create. तो आपको उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एज वेल एज आपके जो एग्जाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कोर्स स्ट्रक्चर में है वहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हो. क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे दिमाग में वो आइडिया स्ट्राइक होना चाहिए, देन ओनली. तो ये डेटा स्ट्रक्चर का जो टॉपिक, जो प्रॉब्लम क्या था, स्टैक, वो मैंने इसलिए लिया बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी will have very clear conceptions about this problem, the terminologies of stack and so on, stack full, stack empty और जो भी situations होते हैं. Just my intention ये था कि क्योंकि problem definitions हमारा clear था, so we have to just design as and consider those exceptions handling concept, creating our own exceptions, creation of checked and unchecked exceptions, all these categories, है ना. अब आप बताइए, एनी क्वेरीज? 3 ही तो पार्टिसिपेट करो और बाद और रिमेनिंग स्टूडेंट्स कहाँ, सो गए क्या? दे आर कनेक्टेड बट नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स. प्रखर अशोक, ओके. Yes, sir. कोई एनी डाउट? No, sir, no doubt. क्लियर है ना सारे? अब तो आप उसको Yes. यूज कर सकते हैं ना, जब आप अपने डिजाइन करें, सोचें, कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर डिजाइन अच्छे होने चाहिए. रन टाइम एरर्स बहुत सारे चीजों के कारण आते हैं. सबसे पहले तो रॉन्ग डेटा, है ना, एंड डेटा ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन, जिसको कि हम लोग डेटा वैलिडेशन वर्ड से जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा शुड बी वैलिडेटेड एंड देन पास टू अनदर मॉडल. तो ये हर एप्लीकेशन में होगा ना. तो जो भी सेट ऑफ वैलिडेशन रूल होंगे, अकॉर्डिंगली यू शुड डिजाइन दोस कस्टम एक्सेप्शंस क्लासेस एंड सुटेबली यूज इनटू योर प्रोग्राम, है ना. तो प्रेफरेबली हम ऑलवेज चेक्ड एक्सेप्शंस ही बनाएंगे, क्योंकि हमारी डिजाइन सही रहेगी, और बाय मिस्टेक अगर हमने उसको हैंडल करना प्रोग्राम में अगर भूल चुके हैं, तो कंपाइलर विल एटलीस्ट फ्लैग दोस कंपाइलेशन एरर, raise those compilation error, and we can do the corrections into our code. And Akshita, do you have any doubt? No, sir. और कौन हमारे लर्नर्स है? गुप्ता, ये कहाँ से ज्वाइन किए हैं? आर दे बिलोंग टू योर क्लास? I'm not getting any kind of response from these people. Most of you are behaving like orphan child. कोई देखने ही वाला नहीं है. Only few response. Good that Akshita and Ashok, and maybe 1 or 2 days late, Slok also is active. Now Slok, is this all concept clear to you? Yes, sir.
आप चीजों को बनाएंगे और जो भी डाउट होगी ठीक है। आप कौन से आईडी यूज करते हो? सर VS कोड। VS4। तो कोड तो सेम है, आईडी से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों के बाद हम लोग को क्या कहते हैं, जब हम स्प्रिंग की तरफ बढ़ेंगे तो हमें यूज करना होगा एक्लिप्स। The current ID what I am using is very light ID, JCreator, very simple to use, very light. Easily I can demonstrate you each and every concept. I can compile, I can show you the errors at the bottom. ठीक है, तो आज तो कोई डाउट नहीं है। Now I shall No, share sir. this photo file, PPT and all. Any kind of queries आज तक किसी भी टॉपिक से? OOPS approach or anything? Any kind of doubt? Ashok, Akshita, Slokit, Slok. No, sir, No, everything. sir. Okay, No. so then shall we quit and you work? You try to implement as many as questions, as many as code you do. जितना आप करोगे उतना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। एंड ये जस्ट फाउंडेशंस है। we have to go a long way, है ना? So with this word we shall end our today's session. Okay guys, hope you would have enjoyed, you would have understood the today's concepts, and we will meet tomorrow the most important concept, which is called what is called multi-threading, that is multitasking. This topic का नाम हमारा है state and certain miscellaneous concepts 1 or 2, that is which is very important. And thread बहुत बड़ी topic है, इस concepts को भी समझने की जरूरत है। हमें ऐसे प्रॉब्लम को भी डिजाइन करना होगा जहां मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली करने की नीड हो, है ना? कंकरेंसी, these are very important aspects of Java language, core Java. Hope you would have understood. So with these words I am just ending today's session. Okay, and soon after completion of today's sessions, both the file will be shared on your WhatsApp. You can download and do the practice. Okay then, good night guys. Thank you, sir. Okay, good night. Thank you, sir. Meet again by 6:30, and ask all the friends to download. Many of because of certain reasons, Prakhar and other many people were more and more what is that serious in first 1 or 2 class, couple of class, but maybe because of holiday which got declared, some of our have missed some class, but no issue. हमने जो डिस्कस किया था उसके पीपीटी स्लाइड सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंटेड है, आप उसको देखिए। एंड रिलेटेड टू दैट जो भी जावा कोड है that also has been shared. Okay then bye bye, good night, and we will Good night, sir. Bye. Good night.